Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Tuba Ali, working as a clinical dietitian with the Department of Nutrition, Endocrinology, and Internal Medicine at Aga Khan University Hospital. I welcome you all in today's webinar. As you all know, today is World Diabetes Day, and the purpose of this day is meant to raise awareness about diabetes causes, living with diabetes, and tips for its prevention. So I'll be talking about nutritional management in type 1 diabetes. And we also have another speaker, Ms. Moti Khan, Assistant Manager of Nutrition Department at Aga Khan University Hospital. And she will be telling us about the evidence-based approach in type 2 diabetes. So, and also I want to inform you all that question answers will be taken at the end of both the presentations. So I will start with my talk first. We will talk about nutritional management in type 1 diabetes. I have no commercial or financial interest associated with the contents or delivery of this session. Objectives of my talk are prevalence and overview of type 1 diabetes, impact of insulin insufficiency on metabolism, staging and symptoms of type 1 diabetes, aims of nutritional management, and reduction to carbohydrate counting. So diabetes is rising worldwide and is set to rise even further. According to IDF data, it is estimated that 463 million adults aged 20 to 79 years worldwide have diabetes. And if we talk about Pakistan, over 19 million adults are estimated to be living with diabetes, putting them at risk of life-threatening complications. And if we talk about type 1 diabetes, around 10% of people are living with type 1 diabetes, and over 1.1 million children and adolescents below 20 years have type 1 diabetes. It can affect people at any age, but specifically it affects children or young adults. Type 1 diabetes caused by an autoimmune reaction, यानी कि हमारे ही बॉडी के ऑटोइम्यून जो इम्यून सिस्टम होता है वो ही हमारे बीटा सेल्स यानी कि वो सेल्स जो कि इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उन पर अटैक करता है, ये समझ के कि वो कोई फॉरेन मटेरियल है. सो द कॉज इज नॉट नोन और डिस्ट्रक्शन प्रोसेस अक्सर पहले से ही शुरू हो जाता है, बट सिम्टम्स काफी लेट अपेयर होते हैं. कुछ लोगों के जल्दी भी आ जाते हैं सिम्टम्स एंड कुछ लोगों के ओवर द ईयर्स वो आते हैं, एंड it can develop at any age. So impact of insulin insufficiency on nutrient metabolism. Impaired जो इंसुलिन होता है उसकी वजह से फिर हमारे ग्लूकोज अपटेक नहीं हो पाता मसल्स और एडिपोज सेल्स से, और इसकी वजह से अनकंट्रोल ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज by the help of non-carbohydrate precursors, and result is hyperglycemia यानी कि elevated blood glucose sugars. अच्छा, इसके अलावा जो फैट्स एंड प्रोटीन्स पे इफेक्ट पड़ता है वो ये कि एज इंसुलिन प्रोमोट्स द synthesis of triglycerides and proteins in body cells, but impaired insulin की वजह से increased fatty acids होते हैं, increased levels of triglycerides and muscle wasting होता है ज़्यादा और growth retardation होता है. अच्छा, ADA ने टाइप 1 को स्टेजिंग में डिवाइड किया है, यानी कि 3 स्टेजेस होते हैं. स्टेज 1 में वो लोग जिनके 2 या 2 से ज़्यादा ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं और लेकिन उनके शुगर्स अनकंट्रोल ना हो, नॉर्मल ग्लाइसीमिया हो, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक. इसके अलावा स्टेज 2 में वो लोग जिनके 2 और 2 से ज़्यादा ऑटो एंटीबॉडीज हों पर उनका इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस स्टार्ट हो जाए, और क्योंकि उस वक्त तक बीटा सेल का फंक्शन टोटली वो लॉस्ट हो चुका होता है. एंड थर्ड स्टेज में सिम्टम्स काफ़ी विजिबल होते हैं, एंड दोज इंडिविजुअल्स फॉल इन द क्राइटेरिया ऑफ स्टैंडर्ड डायबिटीज. सिम्टम्स हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया है, एक्सेसिव थर्स्ट है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, पॉलीफेजिया भी होता है यानी कि इंक्रीज्ड एपेटाइट, सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस. ऑनसेट ऑफ डीके. अच्छा, डीके इज अ सीरियस कंडीशन दैट कैन लीड टू डायबिटीज, कोमा और इवन डेथ. डीके में क्या होता है कि या तो हमारे पास इंसुलिन कम होती है, कम डोज लगा होता है, या ड्यूरिंग इलनेस हमारी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. तो जब ग्लूकोज बॉडी में ग्लूकोज नहीं यूज कर पा रहा होता बॉडी क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है, तो फिर फैट ब्रेकडाउन होता है फॉर द फ्यूल.
ऑफ द बॉडी। एज वी ऑल नो कि ग्लूकोज प्राइमरी फ्यूल है बॉडी का, लेकिन जब ग्लूकोज नहीं यूटिलाइज हुआ तो फिर फैट ब्रेक डाउन होता है और जिसके रिजल्ट में फिर कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ये कीटोन बॉडीज जो है एसिडिक होती हैं नेचर में, जिसकी वजह से फिर आपका ब्लड भी एसिडिक हो जाता है। और फिर उसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं थर्स्ट या ड्राई माउथ, frequent urination, high blood glucose levels, high levels of ketones in the urine, as ketones can be detected in urine and blood. और later on constantly feeling tired होता है, dry flush skin होता है, nausea, vomiting और abdominal pain, difficulty breathing, fruity odor होता है और a hard time paying attention और confusion. अच्छा, 3 कॉजेज होते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के। एक होता है नॉट इनफ इंसुलिन, डोज नहीं लगाया सही से बॉडी, या आप बीमार हैं तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स आपकी बढ़ जाती हैं। फिर नॉट इनफ फूड, के मील स्किप हो गया है, या जैसे कि तबीयत खराब होती है, नहीं दिल कर रहा खाने का, तो एक ये भी वजह होती है। और दूसरा होता है इंसुलिन रिएक्शन, यानी कि लो ब्लड ग्लूकोज। ये सॉरी अच्छा, इंसुलिन रिएक्शन यानी कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन है बॉडी में और उसकी वजह से आपके ग्लूकोज लेवल्स डाउन जा रहे हैं, और फिर लो शुगर मीन्स के इनफ ग्लूकोज नहीं है कि बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने टाइप 1 के लिए टारगेट गोल सेट किया है A1C का। जैसे कि लेस देन 18 ईयर्स के हैं तो लेस देन 7.5 हो उनका A1C, अडल्ट हैं तो लेस देन 7, ओल्डर एडल्ट्स जो कि 65 ईयर्स के या उससे ज़्यादा के हों तो लेस देन 7.5, और इसके अलावा कुछ जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं जिनके हेल्थ इश्यूज होते हैं वो लेस देन 8, और जो पुअर हेल्थ के साथ हों वो लेस देन 8.5। एम्स ऑफ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यही है कि एप्रोप्रिएट ईटिंग बिहेवियर हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो आपका, 3 मील्स अ डे हो, इनकॉर्पोरेटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशनल फूड्स, जो कि हम यूजुअली बताते हैं, एडवाइस करते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हों। इसके अलावा a balance between food intake, metabolic requirements, energy expenditure, and insulin action profiles to attain optimum glycemic control. And develop a supportive relationship to facilitate behavior change and positive dietary modifications. इसका मतलब ये कि आपकी फैमिली भी सपोर्टिव हो और या मतलब कि आपके लिए मुश्किल ना हो ये सब मैनेज करने में। And reduce the risk of micro and macrovascular complications. न्यूट्रिशन असेसमेंट में 3 चीज़ों पे हम फोकस रखते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, जिसमें हाइट, वेट, बीएमआई वगैरह होता है, ग्रोथ रेट होता है। बायोकेमिकल डेटा में हमारे जो लैब पैरामीटर्स होते हैं A1C, ग्लूकोज, लिपिड्स वगैरह, किडनी फंक्शंस एंड ब्लड प्रेशर्स। और फूड न्यूट्रिशन हिस्ट्री जो कि बहुत मेन चीज़ है, फूड इनटेक, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ नॉलेज एंड फूड अवेलेबिलिटी, एंड अगर कोई सप्लीमेंट यूज है तो। So carbohydrate counting is not a one size fits all meals, ठीक है, वेरी करता है हर किसी के लिए, सबको एक ही हम प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं डाल सकते, and it helps to plan and eat balanced meals with a good glucose control. अच्छा, 3 स्टडीज मैंने यहाँ ऐड की है जो कि actually tells us the effects of carbohydrate counting on glycemic control in type 1 diabetic patients. तो इस स्टडी में ये हुआ था कि जब कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग की ट्रेनिंग दी गई तो उसकी वजह से ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा हुआ और HbA1c जो है रिडक्शन भी हुआ 0.5%, वाज सस्टेन्ड एट 12 मंथ्स। तो इन समरी पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी आपको मिली है विदाउट एन इंक्रीज इन हाइपोग्लाइसीमिया इवेंट्स, एंड इवन वेट भी आपका से कंट्रोल रहता है। सेकेंड स्टडी जो कि बच्चों में हुई थी, कार्ब काउंटिंग विच इज जो कि फ्लेक्सिबल न्यूट्रिशन मॉडल है, ठीक है, एंड बेटर मेटाबॉलिक कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड इन चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स, और वही वाली बात, वेट इंक्रीज नहीं होता और इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स भी आपके कंट्रोल में रहते हैं और HDL वगैरह भी आपका कंट्रोल में रहता है। ये जो स्टडी थी, this study showed that offering carbohydrate counting to patients with type 1 diabetes treated with insulin pump improves quality of life, and a reduction of HbA1c not accompanied by an increase in hypoglycemic events may be expected when patients continuously use carbohydrate counting in the daily management of their diabetes. कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग कोई एक हफ्ते की चीज नहीं है, या आपको प्रोलॉन्ग यूज करना होगा तभी उसके इफेक्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे। तो वी हैव अ केस स्टडी, ठीक है,
A 5-year-old girl हमारे ओपीडी में आए थे with a primary diagnosis of DK, diabetic ketosis acidosis, secondary to new onset of type 1 diabetes. Client history में patient exhibited increased thirst, hunger, increased urination, vomiting, and some weight loss. And there was no family history of diabetes. Anthropometric हमारे पास जो हैं weight 13 kg, height 108 centimeter, lab parameters में HbA1c 8.3 and random हमारे पास जो उनकी sugars आ रही थी वो 480, 473 मतलब के higher side पे थी. और current insulin doses उनकी जो basal insulin है lentils यानी कि 5 units and bolus insulin epiidra जो कि 2 units in breakfast, 1 unit in lunch and 2 units in dinner. तो उसके हिसाब से टोटल डेली डोज इनका 10 यूनिट्स हो. ग्रोथ चार्ट पे जब हम उनको प्लॉट किया गया तो उनका काफी वो अंडरवेट थी काफी और उनका आइडियल बॉडी वेट जो 50th परसेंटाइल पे आ रहा था वो 18 kg. तो न्यूट्रिशन हिस्ट्री में जब उनकी मदर से बात की गई तो जैसे कि सब बच्चों का ही होता है, शी डजंट लाइक टू हैव वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, पुअर एपेटाइट थी एंड शी वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड बेसिकली जंक फूड. और फास्टिंग शुगर्स उनकी 375, 450 एंड 470 थी एंड inadequate fluid intake. So let's start with the nutritional intervention. So carbohydrate counting is an approach that promotes consistency of carbohydrate intake at specific times of the day and for specific needs. And it is a way of matching insulin requirements with the amount of carbohydrate that you eat or drink. Levels of carbohydrate counting होते हैं, and as we all know, carbohydrate counting aims to improve glycemic control and allows flexibility of food choices. So first इनका है first level होता है consistent carbohydrate intake, यानी कि हम उसमें exchange list या portion list use कर सकते हैं ताकि हम food की quantities measure कर सकें, and this is appropriate for those on twice daily insulin. इसके बाद आता है हमारा पैटर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ठीक है, इसमें ये होता है कि तब तक आप इतना ट्रेन हो चुका होता है पेशेंट कि वो रिकग्नाइज कर सकता है कि कितने पोर्शन में कितने ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और उसको कितना पोर्शन लेना है. उस हिसाब से वो अपने इंसुलिन भी एडजस्ट कर सकते हैं इजीली ताकि ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हो जाए. ठीक है, क्योंकि वो उनको तब तक आइडिया हो जाता है कि ब्लड ग्लूकोज कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कितने पोर्शन पे, एंड साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी वो अपना उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है. फिर एडवांस लेवल आता है आईसीआर, जब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पेशेंट की पोर्शन के साथ एस्टिमेटिंग के साथ कि कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, तो फिर एडवांस लेवल आता है आईसीआर. आईसीआर यानी कि इंसुलिन टू कार्ब रेशियो. It is appropriate for when using basal bolus, यानी कि multiple daily injections or an insulin pump. So ICR is calculated. This lets patients adjust their prandial insulin dose according to carbohydrate consumption. तो हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्चेस में होता है, स्टार्ची वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, शुगरी बेवरेजेस एंड स्वीट्स, एंड इसके अलावा फाइबर वगैरह में भी होता है. यहाँ पे ये होता है कि अब हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि हमने कौन से कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, बिकॉज जैसी ही किसी को डायबिटीज डायग्नोज होती है वो सबसे पहले करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बस बंद कर दें, रोटी चावल छोड़ दें तो हमारी शुगर्स कंट्रोल हो जाएगी. नहीं, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हम छोड़ नहीं सकते. ठीक है, वो एक तो सबसे पहली बात ये कि वो प्राइमरी फ्यूल है हमारी बॉडी का, प्लस ये कि उससे हम विटामिन वगैरह मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो हम कोई भी चीज को छोड़ नहीं सकते. हाँ, हम उसका पोर्शन जरूर कम करेंगे, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज पे फोकस करें कि हम कौन से कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग का ये फ्लो चार्ट है कि जिसमें हम बेसिक कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग बताते हैं. जैसे कि पहले हम बात हुआ कि एस्टिमेटिंग, यानी कि पेशेंट इतना बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसकी कि वो जितना पोर्शन ले रहा है उसमें उसको आइडिया हो कि कितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 1 bowl ऑफ राइस है तो उसको आइडिया हो कि उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 30 ग्राम्स हैं, 45 ग्राम्स हैं या जितने भी हैं. इसके अलावा लेबल रीडिंग, जो भी प्रोडक्ट वो अगर बाहर से कुछ परचेज कर रहा है तो वो उस पर अच्छी तरह लेबल रीडिंग करे, उसमें देखे कि एडेड शुगर्स कितने हैं, सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं और टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं उसमें. एंड देन वेइंग, ताकि पोर्शन साइज भी आपका एक्यूरेट हो. जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसके बाद एडवांस कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग आती है जिसमें हम आईसीआर आईएसएफ निकालते हैं, यानी कि इंसुलिन टू कार्ब रेशियो एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर.
और मल्टीपल डेली इंजेक्शंस पे हो पेशेंट या फिर इंसुलिन पंप पे। So we have already discussed that basic carbohydrate counting is knowledge about the foods that contain carbohydrate. Patients are encouraged to eat consistent amounts of carbohydrates at meals and snacks. So the number 15. So one serving of carbohydrate equals to 15 grams, but again यहाँ पे serving sizes different होंगे. For example, half cup of mashed potatoes है तो और one slice of bread. दोनों के serving sizes different हैं, but उनमें carbohydrate content 15 grams है. So all these और जैसे कि 1 ounce of dry cereal है तो it also contains 15 grams. So approximately 40 अगर हम generally बात करें तो approximately 45 to 60 grams और 3 to 4 servings of carbohydrates each meal recommended है, and 15 to 30 grams और 1 to 2 servings of carbohydrate भी recommended है कि हम as a snack अगर किसी को दे रहे हैं तो 15 या 30 grams का हो. But again it varies. ठीक है, अगर किसी के अनकंट्रोल शुगर्स है तो हम उसको 60 ग्राम्स पे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे सकते. ठीक है, तो उस हिसाब से फिर जितना जिसके शुगर ज़्यादा होते हैं हम उस हिसाब से उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी डिसाइड करते हैं. अच्छा, फूड एक्सचेंज लिस्ट. एजुकेशन और काउंसलिंग से पहले ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम उनकी पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स भी पता करें, उनका लाइफस्टाइल पता करें, उस हिसाब से हम फिर उनको गाइड करना शुरू करें. ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज लिस्ट वी कैन डिटरमिन इंडिविजुअल्स फूड इनटेक. ठीक है, इसके अलावा कि वो कितना पोर्शन किस चीज़ का ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कितनी दफ़ा ले रहे हैं दिन में, एंड साथ साथ कि उनका फिर इसके अलावा उनका मील टाइमिंग क्या है, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें भी क्योंकि इम्पैक्ट डाल रही होती हैं आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स पे, और वो इंसुलिन कितना प्रॉपर ले रहे हैं, डोजेज अपनी तरफ से तो कम नहीं कर रहे. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग मेथड्स में कार्बोहाइड्रेट गाइड, कार्ब काउंटिंग गाइड है, यानी कि वो हैंडआउट जो हम जब पेशेंट हमें विजिट करता है फर्स्ट विजिट तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं. न्यूट्रिशन लेबल रीडिंग हम इंश्योर करते हैं कि पेशेंट को समझ आ जाए कि उसको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है. मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स, वेइंग फूड्स, यानी कि एक्यूरेट पोर्शन उसको बताएं कि आपने ये चीज़ इतने ही पोर्शन में लेनी है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली आपके शुगर्स पे इफेक्ट पड़ेगा. एंड एस्टिमेटिंग द कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड्स विदाउट यूजिंग एनी मेजरमेंट टूल. तो फूड लेबल्स में हमें सर्विंग इंफॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, टोटल कैलोरीज देखें हम उसकी, इसके अलावा उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से एडेड हैं, और परसेंट डेली वैल्यू ज़रूर देखना होगा ताकि हमें अंदाज़ा हो कि एडेड शुगर्स, सैचुरेटेड फैट्स कितने उसमें एडेड हैं, तो हम अपने हिसाब से अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से वो लें. तो एफडीए ने 2016 में अपडेट किया था न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल, जिसमें सर्विंग साइज वो बोल्डर टाइप में था. इसके अलावा सर्विंग साइजेस अपडेटेड हुए थे, कैलोरीज और लार्जर फॉन्ट में हुई थी, और अपडेटेड डेली वैल्यूज भी उन्होंने और बोल्ड उसमें लिखा था. एंड इसके अलावा विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड हुए हैं, एंड न्यू एडेड शुगर्स का भी इसमें ऐड ऑन किया था उन्होंने. बट कीपिंग इन माइंड कि सर्विंग साइज, वेट इन ग्राम्स फॉर वन सर्विंग, दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद कार्बोहाइड्रेट ग्राम्स. So this is the handout. It's comprised on 5 pages जो कि हम जो डायबिटिक होते हैं, टाइप 1 डायबिटिक, उनको ये हैंड ओवर करते हैं और उसमें इनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह के हिसाब से आईसीआर निकालते हैं. एंड दूसरा ये कि हम उनको पहले तो मेक श्योर करते हैं कि जब वो डॉक्टर के पास आए हम उनको पहले बताएं कि टाइप 1 डायबिटीज में एक्चुअली हो क्या रहा है. बिकॉज जब फर्स्ट टाइम उनको पता चलता है कि वो डायबिटिक हो गए हैं और टाइप 1 डायबिटीज है तो और इंसुलिन ही लगानी है डायरेक्ट, तो वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं. तो इट्स बेटर कि पहले क्लियर किया जाए पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा बहुत कि हो क्या रहा है, उसके बाद फिर हम जब डाइट पर आए तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स में डिफ्रेंशिएट करना बताएं कि रिफाइंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, एंड देन फिर आईसीआर वगैरह हम उनको जब फर्स्ट विजिट में ज़्यादा अच्छा यही होता है कि उनको एक बेसिक हम बता दें कि वो किस तरह अपना डाइट कंट्रोल करें, एंड देन नेक्स्ट विजिट में उनके जितना भी डोज है उसके हिसाब से आईसीआर निकालें. इंसुलिन टू कार्ब रेशियो जो हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे कि इट हेल्प्स यू डोज हाउ मच units of insulin you need to cover the carbohydrate to eat at a meal or snack.
यानी कि मैं कितना यूनिट लगाऊंगी कि मेरे 15 ग्राम जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, हर किसी का प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट होता है। स्टार्टिंग रेशियो यूजली 1:15 होता है, यानी कि 1 यूनिट 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट को कवर करेगा। रेशियोज वेरी कर सकते हैं, फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंट या वीस पेशेंट तो 1:10, ठीक है। इंसुलिन सेंसिटिव यानी कि जो अंडर वेट हो, बच्चे हों अगर, तो 1:20 पे भी जा सकते हैं, बट अगेन इट वेरीज। अच्छा, थंब रूल है कि जो आपका, हम जिस तरह ये आईसीआर कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें हमारे पास बेसिस बोलस हो, ठीक है, उसका टोटल डेली डोज। जैसे कि हमने केस स्टडी में देखा कि जो बेसिल है वो 5 यूनिट्स लेंटिल्स है, और जो बोलस है वो 2 यूनिट्स इन ब्रेकफास्ट, 1 यूनिट इन लंच एंड 2 यूनिट्स इन डिनर है। तो जब हम उसको टोटल किया तो 10 हमारे पास आया था। तो यानी कि जब हमें आईसीआर निकालना है तो हमारे पास टोटल डेली डोज हो, और 500 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर होगा वो हमें बताएगा कि कितना यूनिट हमारा कितना कार्बोहाइड्रेट को कवर कर रहा है। एंड 300 या 450 का जो रूल है वो इट इज फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन हु नीड लेस देन 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन अ डे इज ऑफन यूज्ड। सो इनिशिएटिंग न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हम आईसीआर जब उसको निकालते हैं, अच्छा, हियर आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड कि बच्चों में यूजुअली 0.8 यूनिट पर केजी के हिसाब से जो है इंसुलिन डोज एडजस्ट किया जाता है, और 50 to 60% उसमें बेसल होता है, एंड 40 to 50% उसमें बोलस होता है, ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये होता है पीडियाट्रिशियंस हमारे जो एंडोक्राइनोलॉजी में होते हैं वो इनिशियली उनको डोज एडजस्ट करवाते हैं, बट उनको हमारे पास कार्ब काउंटिंग के लिए इसलिए नहीं भेजते बिकॉज वही वाली बात कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। बट वंस दे आर स्टेबल तो फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास रेफर किए जाते हैं, और फिर हम उनको आईसीआर वगैरह का समझाते हैं। और अगर कोई इशू होता है तो हम उनको वंस अ वीक में या ट्वाइस या फिर 2 वीक्स बाद हम उनको बुलाते हैं वापस से। तो 300 को अगर हम यूज करेंगे 10 यूनिट्स हमने उसके लिए जो हमारा टोटल डेली डोज था, तो 30 हमारे पास 30 आया है आईसीआर, यानी कि 1:30, 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन विल कवर 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो 1 यूनिट ऑफ एपिड्रा 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कवर करेगा। इसके अलावा फिर हम निकालते हैं कि फिर हमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को भी एडजस्ट करना होता है पर इंसुलिन डोज। अब जैसे कि जो हमारा चार्ट होता है उसमें हमने ग्रामेज के साथ दिया हुआ होता है हर चीज के कितने किस चीज में कितना ग्राम है। तो 1 चपाती में 30 ग्राम्स है, फिर अगर वो चिकन करी ले रहा है, अच्छा, इसके अलावा 1 कप सैलेड है 7 ग्राम्स है, और 1 मीडियम फ्रूट है। तो जब हम इन सबको टोटल करते हैं तो 52 ग्राम्स है, ठीक है। और अब जो हम यूनिट्स हम निकालते हैं पर मील के हिसाब से वो हमारे पास होता है फूड बोलस, ठीक है। तो इट टेल्स द अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिक्वायर्ड एज पर ईच मील्स कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन ग्राम्स। सो 52 डिवाइडेड बाय 30 जो कि हमारे पास फिर 1.7 यूनिट्स आया है, और उसको राउंड ऑफ हम करेंगे तो 2 यूनिट्स हमारे पास फूड बोलस आया, यानी कि अगर जैसे लंच करिए तो उसको सिर्फ 2 यूनिट्स नीडेड है। So a pedra 2 units will cover her 52 grams of carbohydrates. तो जब हमारे पास पेशेंट काउंसलिंग वगैरह डन हो जाती है तो हम उनको हैंड आउट देते हैं, फूड लेबल्स का हम बता चुके होते हैं, एंड वी आल्सो आस्क देम टू मेंटेन अ फूड डायरी, और इसके अलावा एसएमबीजी चार्ट, और फिर फॉलोअप के लिए वन वीक आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 2 वीक्स हम बुलाते हैं। अच्छा, आईसीआर के बाद हम आईएसएफ निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर उसको हम करेक्शन फैक्टर या सप्लीमेंटल फैक्टर भी बोलते हैं, किसी की प्री मील नहीं टारगेट रेंज में आ रही तो उसके लिए फिर आईएसएफ होता है, और उसके लिए भी ये फॉर्मूला होता है 1500 इंसुलिन रेजिस्टेंट या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के लिए, और 1800 इंसुलिन सेंसिटिव या रैपिड एक्टिंग के लिए, एंड समटाइम्स 2000 डिवाइडेड बाय टोटल डेली डोज भी ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। Correction bolus, it is a total dose to be taken for a meal to correct both meal carbs and pre-meal high blood glucose. ठीक है, यानी कि जब हमने आईएसएफ निकाल लिया है तो फिर उसके बाद हम करेक्शन बोलस निकालते हैं उसकी एक मिनट। So this is how the worksheet looks like for advanced insulin management.
जब हमें करेक्शन डोज निकालना है तो उसके लिए करते ये हैं कि जो करंट ब्लड ग्लूकोज आ रहा है उसको हमने टारगेट ब्लड ग्लूकोज को सब्ट्रैक्ट करना होता है करंट ब्लड ग्लूकोज से, एंड इट इज देन डिवाइडेड बाय द करेक्शन फैक्टर यानी कि ISF। और उसके बाद हमारे पास आता है करेक्शन डोज, जिसको हम एड ऑन करते हैं फूड बोलस से, यानी कि जो हम पर मील इंसुलिन डोज निकालते हैं। So diabetes tech on the horizon. I have seen in my clinics ये continuous glucose monitoring एक sensor होता है जो कि use किया जाता है to track blood glucose levels throughout the day and night, and it works through a tiny sensor inserted under your skin. और इसके अलावा ये आप कभी भी use कर सकते हैं, whether you're showering, working, exercising or sleeping. It's much better than pricking हर दफा हम करें। और it measures our interstitial glucose level, which is the glucose found in the fluid between the cells. के स्पेशल फीचर्स में हमारे पास ये होता है कि अलर्ट्स वो देता है हाई एंड लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में, एंड मेजर इसका फीचर ये भी है कि द डेटा कैन बी डाउनलोडेड टू अ कंप्यूटर और स्मार्ट डिवाइस टू मोर इजीली टू सी योर ग्लूकोज स्ट्रेंथ। सो और दूसरा ये कि ADA भी रेकमेंड करता है कि CGM जो है इंटेंसिव इंसुलिन के साथ किया जाए यूज, सो दैट वो एक यूजफुल टूल होगा ताकि हम A1C वगैरह भी कंट्रोल कर सकें। सो दैट्स ऑल। आपके क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे at the end of Miss Moti's presentation. So these are the references. Thank you. So I will ask Miss Moti to share her valuable knowledge with us. So over to you, Miss Moti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope मेरी आवाज सबको clear होगी. I welcome you all in this session. After a very good talk, wonderful talk by Ms. Toba, I'm going to share some of the glimpses about evidence-based dietary approaches and in type 2 diabetes management. And we need to see that either where actually we are standing in current scenario, and we need to discuss some of the important consensus reports जो कि connect करते हैं कि type 2 diabetes में एक ही तरह के nutrition interventions बताई जाती हैं, and what is yet to discuss further in future perspective or updated इस वक्त हमें क्या consider करना चाहिए. So I'm going to discuss with 2 to 3 main learning points. Objectives are just where are we actually standing as a nation in the rating of Pakistan, in the rating of diabetes prevalence in Pakistan. Consensus reports, some of the studies में एक दो studies कुछ latest में reports share कर लूँगी. COVID-19 and diabetes, a very small and brief insight about where we are standing with diabetes population and how they're coping up during this pandemic and what are the preventions that we need to consider. In our clinical practice, we have practiced in type 1 diabetes population in AQH, how we have empowered our patients through carbohydrate counting technique, which already Ms. Tuba has shared with you some of the studies also. So considering this theme for today, it's World Diabetes Day, and yes, we need to see the alarming figures that IDF Atlas has told us to, that out of 232 million people, 1 in 2 adults with diabetes are undiagnosed. And 1 in 5 people with diabetes are above 65 years of age are getting diabetic due to the non-compliance, due to the lack of knowledge and everything. So 10% ultimately जो हमारी global health care cost जो है ये बाहर countries के figures हमें बता रहे हैं, but जो हमारी अपनी पाकिस्तानी अगर हम सेटिंग और पॉपुलेशन में देखें तो हेल्थ केयर कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि लोग मेडिसिन और इंसुलिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिन लोगों को डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है दे टेक इट अप एज इफ के बाद में देख लिया जाएगा, कुछ नहीं होता, मेडिसिन अभी नहीं लेते, बाद में ले लेंगे, एंड दे आर जस्ट डिलेइंग द थिंग्स एट देयर एंड ऑल्सो. फिर जब कॉम्प्लिकेशंस की बात आती है तो हेल्थ जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत बढ़ जाता है. Again, type 1 की prevalence भी बढ़ती ही जा रही है because it's over 1.1 million children around the world and adolescents below 20 years of age are having diabetes type 1. इसमें heredity या family history भी involved है, और other than that insulin जो insufficiency है वो ultimately develop भी हो रही होती है due to the genetic predisposition also. So IDF estimates that there will be 578 million adults with diabetes by 2030. And 700 million by 2045. So the prediction is not good at all. We can see that projections हमारी इतनी अच्छी नहीं है. In 2019, we are standing in 578 million population
with diabetes type 2. But now the future projection is not good, as they are just catching the height to 700 million by 2045, which is quite alarming. Again, if we consider some of the standings in top 10 countries or territories in the world, and in the prevalence of adult type 2 diabetes, now you can see that we are on fourth position amongst the top 10 countries in the world. And by 2030, we are still standing on fourth. But again, in 2045, we are standing on third position out of the top 10 countries in the world in the prevalence of diabetes. So this is quite alarming. And again, I must say that, like Tuba shared her experience and her talk, that lifestyle modification and dietary modification is the key to it. Again, doctors always rely on several different approaches to diagnose diabetes and pre-diabetes, but हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को self medication या self diagnosis का बहुत ज़्यादा एक concept है. So we need to clear certain things. So HbA1c is a test that measures average blood glucose levels for the last couple of months. So HbA1c greater than 6.5 is a diagnosis of diabetes. Again, if we see fasting plasma glucose levels, at least 8 hour fasting के बाद अगर हम fasting glucose check करेंगे और if it's 126 milligram per deciliter से higher है, then it is a diagnosis for diabetes. Again, the most reliable test amongst our endocrinology team and the physicians recommend to diagnose diabetes type 2 is oral glucose tolerance test. So this is again a 2 hour glucose load test, and if it's 200 milligram per deciliter or higher, then it is a definite diagnosis of diabetes. Again, the random or casual plasma glucose test, agar wo 200 milligram per deciliter se zyada hai, then it is again a diagnosis of diabetes again. But out of these all reports, the most reliable one to be considered hota hai, that is oral glucose tolerance test, जो कि mostly physicians advise करते हैं patients को for initial diagnosis. So again, just a glimpse about COVID-19 and diabetes. Diabetic population में the जो patients diabetes के साथ हैं उनकी already immune system हमेशा compromised रहता है. And considering that compromised immune system, उनके अंदर कोई भी viral या bacterial infection catch करने की जो एक tendency है वो बहुत ज़्यादा होती है. अगर हम ओवरऑल दूसरी कंट्रीज में कुछ फिगर्स देखें तो इटली एंड चाइना में द पीपल विद डायबिटीज अंडर द एज ऑफ 25 years आर नॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल्स with COVID. लेकिन ये एज ऐसी होती है कि यहाँ पे इम्यूनिटी थोड़ी सी compromised है, but these are the population under the age of 25, they are able to cope up with the viral infection, which is COVID-19. But older people with diabetes should be cautious to have good blood glucose control. So the main idea to consider is to control the blood glucose levels as much as possible, especially 65 years and above population के लिए, to fight against this COVID. स्टडी वुहान में की गई थी जिसके अंदर एवरेज एडमिशन हॉस्पिटल के एडमिशन रेट में मोर देन 66 years ऑफ एज के जो एल्डरली लोग देखे गए थे, जिन लोगों की अनकंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स थे, they were not recovered properly with COVID, and their mortality rate was high as compared to the people who had better blood glucose control. So healthy lifestyle and eating habits needs to be focused. So the importance of education, हमें सबको पता है, as a dietitian we all are practicing in our own clinics and hospitals and private settings. You need to focus on something, cutting down the saturated fats or restricting it according to customized individualized diet plans. Again, dietary fiber की बहुत importance है, and then preventing the added sugar, alcohol, tobacco use, and avoiding all other things that is not going to be diabetic friendly for any population. So I'm going to share quickly some consensus report from American Diabetes Association, and this is an article from 2019 May. कुछ consensus reports निकली जिसमें कुछ suggestions एक main आई थी जिसमें dietitian का बहुत ज़्यादा role है. All RDNs providing medical nutrition therapy in diabetes care should assess and monitor medication changes. हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आपने डाइट प्लान पेशेंट को पकड़ा दिया या आपने सिर्फ उसका HbA1c और पोस्ट प्रैंडियल और प्री मील्स देख के उसको सिर्फ एक फिक्स प्लान दे दिया. You need to assess the list of medications and insulin the patient is having, which is very important because insulin का connection या medicine का connection आपकी dietary eating habits से बहुत ज़्यादा deep है. इंडिविजुअल्स विद टाइप 1, जिनको टाइप 1 जो कि इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी के अंदर पेशेंट्स हैं, कार्ब काउंटिंग अप्रोच बहुत बेस्ट है और ये पेशेंट्स के अंदर एम्पावरमेंट लाती है. हाइपोग्लाइसीमिया एपिसोड्स इंप्रूव होते हैं, डीके के मल्टीपल एपिसोड्स इंप्रूव होते हैं. सो कार्ब काउंटिंग अप्रोच हैज टू बी मेड इन लाइक एज इन मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप 1 डायबिटीज पॉपुलेशन.
एडल्ट यूजिंग फिक्स डेली, जो पेशेंट्स टाइप 2 के साथ हैं मगर फिक्स डेली डोजेस पे हैं इंसुलिन की, उनके अंदर कंसिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट इनटेक को इंकरेज करना बहुत जरूरी है. एंड अगेन यू नीड टू रिफ्रेश द डाइटरी प्लान आफ्टर एवरी 2 to 4 weeks और 5 weeks जस्ट टू सी कि अगर कोई इंसुलिन या मेडिकेशन के चेंजेस आए हैं तो डाइटरी में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस करना बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया. अगेन अ मिक्स मील प्लान दैट कंटेन्स कार्ब्स, लेकिन उसमें हाई फैट हाई प्रोटीन भी है. तो इंसुलिन डोजिंग को भी हमें कंसिडर करना है कि कार्ब काउंटिंग के साथ साथ प्रोटीन और फैट का जो कॉम्पोजिशन मील्स के अंदर है हम उसको भी कंसिडर करके जरूर रेकमेंड करें. Again, nutrition therapy. This is an article I found out, which is published on 6 February 2020, and evolving nutrition therapy for diabetes. So basically, 9 articles were published, जिसको इन्होंने review किया था, जिसमें they made a statement that बहुत सारी nutritional guidelines developed हो गई हैं by ADA and European Association for the Study of Diabetes, जिसमें dietary guidelines को बहुत ज़्यादा focus किया गया. लेकिन उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये पॉइंट निकल के आया, द प्राइमरी गोल टू प्रिवेंट टाइप 2 इज permanent weight reduction, which is the key role, which is going to play the key role in, even remission of type 2 diabetes also. So the direct study results have shown that substantial weight reduction may also result in the remission, and again diminishing the fat content, that is fatty liver या metabolic syndrome अगर है तो patient उससे भी बहुत अच्छे से recover कर रहा होता है with sustainable weight loss plans. Again, to conclude this article, new findings based on nutritional sciences help us to update the dietary recommendation in patients and diabetes. Pakistan में कोई भी nutrition की guidelines specifically according to Pakistani population are not developed yet, and this we need to think a lot on it. And maybe मैं आपसे एक अच्छी news share करूँगी about the nutrition implication. We need to see that personalized dietary guidelines बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें हम सब RDNs का बहुत ज़्यादा रोल है. सो बेसिक रिसर्च जो सब दुनिया में हो रही है डाइटरी इंटरवेंशन और टाइप 2 डायबिटीज और डायबिटीज प्रिवेंशन पे जितनी हो रही हैं, उसमें इट इज कनेक्टेड टू द रोल ऑफ द गट, again the preventive role of the diet connecting with the gut, and then the phenotype and genotypes of type 2, that is जो hereditary या family history या genetic history diabetes की जो लोग कैरी करते हैं, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको individualized nutritional intervention देना बहुत जरूरी है. कंसिडरिंग अनदर कंसेंसस रिपोर्ट जो कि शायद आप डाइटिशियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कि हमारे पास गोल्स ऑफ न्यूट्रिशन थेरेपी हमें पता है कि हमें सैचुरेटेड फैट कितना डिस्ट्रिक्ट करना है, वेट लॉस प्रमोट करना है, कॉम्प्लिकेशन से बचाना है. लेकिन अगेन दे आर सर्टेन काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि निकल के आई थी, जिसमें नई न्यूट्रिशन पैराडिम को उन्होंने फोकस किया था. यू कैन रीच आउट टू दिस गुड आर्टिकल ऑन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की वेबसाइट पे. So the title is The Old versus the New Nutrition Paradigm. So MNT is a calculated American Diabetes Association recommendation. ADA diet हम देखते हैं जब हम जाते हैं किसी भी वेबसाइट पे न्यूट्रिशन के लिए, तो वहाँ वेट लॉस, आइडल बॉडी वेट सस्टेनेबिलिटी, कटिंग आउट शुगर्स एंड स्वीट्स और ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. बट अगेन there is ADA अब ये कहता है कि there is no longer an ADA diet that applies to all patients with diabetes. आपको individualized plan देना है. You need to restrict the dietary instructions according to patients' eating habits, the ethnic habits, the financial status, and then the eating capability. Like patients को जितना support आप diet की plan के अंदर दे सकते हैं, उसकी अपने comfort zone में वही recommend करें. Weight loss is typically helpful but not an essential treatment for improving blood glucose. कुछ हमारे यहाँ बहुत फोकस ये होता है कि हम BMI इसको बहुत फोकस करके कैलकुलेट कर रहे होते हैं. So it's all about BMI calculation and coming back to ideal body weight. So I think अब हमें थोड़ा सा BMI और ideal body weight के फ्रेम से बाहर निकल के एक पेशेंट की लैब रिपोर्ट्स जो हम बायोकेमिकल पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हुए और उसकी अपनी फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए पेशेंट्स को हमें आइडिया हो जाता है कि ओबीस की कौन सी कैटेगरी में है या पेशेंट का BMI कितना होगा. हमें उसको इंडिविजुअलाइज कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड प्लान देना बहुत जरूरी है. अगेन जो हमारे पास अपडेटेड न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकल के आई है कि बहुत सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है अपना काम सही से नहीं कर पा रही होती टाइप 2 के अंदर. तो यू नीड टू इनकरेज विद सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन ई एज वेल, again through diet or through multivitamins. And type 2 is a progressive disease, remember, and medical nutritional management should always be part of the diabetes care plan. आप कभी भी medical nutrition therapy को किसी भी डायबिटिक पेशेंट की लाइफ से नहीं निकाल सकते. You need to encourage with good physical activity and appropriate flexible meal plans for type 2 population. So eating patterns reviewed for this report, इस रिपोर्ट में कुछ eating patterns को रिव्यू किया गया था, जिसके अंदर USDA dietary guidelines for Americans डेवलप की गई थी, जिसमें कुछ potential benefits निकले थे.
हमारे पास जो मेजर हम फोकस करते हैं वो हमारे पास मेडिटेरेनियन डाइट है, जिसके अंदर आपको पता है कि लीन फिश एंड चिकन प्रेफर किया जाती है, सी फूड इज प्रेफरेबली रिकमेंडेड, अनसैचुरेटेड फैट्स को हम इनकरेज कर रहे होते हैं, एग्स को लिमिट करते हैं, रेड मीट को लिमिट करते हैं, शुगर्स को हम लिमिट करते हैं। तो इस वाले प्लान के अंदर अगर हम यहाँ पोटेंशियल बेनिफिट्स देखें मेडिटेरेनियन डाइट में, तो इट हैज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज, HbA1c रिड्यूस हुआ, TGs या triglycerides improve हुए, and reduce the risk of major cardiovascular events. So in my practice, I personally recommend Mediterranean diet to my patients who came to the clinic with metabolic syndrome specifically. So it is very beneficial. अगेन वेजिटेरियन और वीगन डाइट्स पे बहुत ज्यादा स्टडी की गई थी, जिसके अंदर इतना ज्यादा लिटरेचर नहीं है, बट अगेन वेजिटेरियन डाइट हैज सपोर्टेड द एविडेंस दैट देयर इज अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज, वेट लॉस एंड LDL एंड HDL जो लेवल्स हैं वो इम्प्रूव किए हुए हैं, जैसे LDL कम हुआ है और HDL इम्प्रूव हुआ है इन डाइट्स में। कुछ सर्टेन डाइट्स है जैसे लो फैट डाइट है, जिसके अंदर आप लेस देन 10% सैचुरेटेड फैट डाइट देते हैं, लेकिन 30% लेस फैट डाइट जो रेकमेंड की गई है जिन पेशेंट्स को ऑन लो फैट स्पेसिफिक डाइट, उसमें वेट लॉस और डायबिटीज के रिस्क रिड्यूस देखे गए हैं। वेरी लो फैट डाइट इज नॉट अ गुड फ्रेंडली रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड एज अ प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन, बिकॉज इसके अंदर अगर आप फैट को 13 to 10% पर अगर फैट रेकमेंड करते हैं किसी पेशेंट को, तो आपको अल्टीमेटली 70 to 77 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बढ़ा के और 20 ग्राम प्रोटीन पेशेंट का बढ़ाना पड़ता है। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस वेरी लो फैट डाइट, ऑल्दो इसके वेट लॉस इफेक्ट्स बेहतर हैं, इसमें ब्लड प्रेशर इंप्रूव हुआ है, मगर इसके अंदर कोई ऐसी स्टडी नहीं आई जिसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज नोटिस की गई हो। Again, we have low carbohydrate diet, which is actually very low carbohydrate diet. So इसके अंदर अगर हम carbs को जैसे तूबा ने डिस्कस किया, अगर हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे, so we are going to have multiple major vitamin deficiencies also. So very low carb diet के benefits you can see, potential benefits आपको दिख रहे हैं. It improved HbA1c, weight loss, lowered blood pressure, and improved the triglyceride levels. But again, very low या low carbohydrate diet को हमें according to patient's weight and height calculate करके according to their basal energy expenditure recommend करना चाहिए. Again, there is another diet which is very quite famous, that is DASH diet, dietary approaches to stop hypertension, जिसमें Mediterranean और DASH में थोड़ा सा difference ये है कि DASH के अंदर हम सोडियम को reduce करते हैं और red meat और sweets को हम reduce कर रहे होते हैं, and it has potential benefits, we have seen in our patients also, and the potential benefits as you can see in the study and article as well. Again, there is Paleo Diet that emphasizes food and theoretically eaten regularly during early human evolution. ये बहुत early, बहुत पहले develop हुई थी. इसमें lean meat, fish, shellfish, veggies, eggs, nuts, berries को recommend किया गया था, और इसमें grains, dairies को grains को restrict किया गया था. So इसके mixed results हैं, but I've seen in certain practices, certain physicians recommend this Paleo Diet to the diabetic population, but इसके mixed results आएंगे. लेकिन I personally recommend that we should focus on DASH and Mediterranean diet and calorie restricted diet according to patients' weight status and weight loss goals. So better we should focus on these two major diets. Weight management ultimately is the primary treatment. Nutrition awareness session करने की बहुत ज़रूरत है, since we are connected with PNDS, we are a member of Pakistan Nutrition and Dietetic Society. We can do a lot in nutrition, developing nutrition awareness modules and sessions in different cities जहाँ पे access to dietitians नहीं है, और जहाँ डॉक्टर्स खाली प्रैक्टिस करके उनको न्यूट्रिशन की भी एजुकेशन पेशेंट्स को देनी पड़ रही है. बट इन मेजर सिटीज तो इशू नहीं है, हमारे बहुत अच्छी कॉम्पिटेंट डाइटिशियंस हर सिटीज में हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रही हैं, बट जहाँ इंटीरियर्स में या स्मॉलर इनर सिटीज के अंदर डाइटिशियन एक्सेस नहीं है, वी नीड टू फोकस ऑन कि हम वहाँ जाके न्यूट्रिशन अवेयरनेस सेशंस और वर्कशॉप जरूर करवाएं. Again, a role of dietitian should be declared mandatory with every diabetologist or physician, which I'm focusing again and again, that this is going to improve the quality of life of our patient. Ultimately, prevention का भी role इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा. Physicians should be educated and trained to help such patients. I've been trained, I was training on different platforms to physicians also, but डॉक्टर्स को भी एजुकेट करना बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगी, बिकॉज अगर 2-4 पॉइंट्स वो अपने पास एक रिमाइंडर रख लेंगे और पेशेंट्स को वही कन्वे कर रहे होंगे, या एक लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 to 10 पॉइंट्स रिगार्डिंग द टाइप 2 डाइटरी मैनेजमेंट इट्स रिस्ट्रिक्शन अगर हम डॉक्टर्स को दे देंगे, तो वो पेशेंट्स को डिसमिनेट कर सकते हैं वो हैंड आउट, और दिस इज गोइंग टू हेल्प इन प्रिवेंटिंग the type 2 diabetes and at least quality
क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही होगी. अगेन नीड टू डेवलप न्यूट्रिशन प्लान एज पर HbA1c लेवल्स. मैंने कुछ प्रैक्टिसेस खुद भी की थी और मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स HbA1c लेवल्स हमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड डाइटरी प्लान्स बनाने चाहिए और हमें पेशेंट को उसी डाइट पे स्टिक करके बहुत सारे उस पर स्टडी करके देखना चाहिए कि कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट अगर हम HbA1c लेवल्स पे करते हैं तो हाउ गुड वी आर इन दैट फॉर दैट पेशेंट के पेशेंट की डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन बचे और उसका HbA1c इम्प्रूव हो रहा हो. So free nutrition camps for initial education. We need to, put and communicate with different pharmaceutical companies. या हम अपनी एक PNDS की जो हमारी एक बिग बॉडी है, हम इनसे रिक्वेस्ट करके न्यूट्रिशन कैंप्स कर सकते हैं, जिस तरह के मेडिकल कैंप्स हो रहे होते हैं डिफरेंट सिटीज में. तो हमें फ्री न्यूट्रिशन कैंप्स करने भी चाहिए. PNDS ऑलरेडी कर भी रही है, बट आई थिंक दिस वी नीड टू इनकरेज मोर. To summarize my talk, there have been major changes in nutrition recommendation. जैसे मैंने कहा कि आपको इंडिविजुअलाइज प्लानिंग पे चलना पड़ेगा और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को आप बहुत फोकसली लेके चलें. एटलीस्ट इनिशियल जब पेशेंट को डायग्नोज होती है डायबिटीज, तो उस पेशेंट को कम से कम 4 से 6 सिटिंग्स रिक्वायर्ड हैं टू सिट विद एनी रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट इन देयर एरिया इनिशियल फर्स्ट 6 महीने के अंदर, ताकि पेशेंट को एक डाइटरी रेजिमेंट का पाथवे एक मिल जाए और फिर पेशेंट उसको फॉलो करे, जिससे ग्लाइसेमिक आउटकम्स उसके इंप्रूव हो रहे होंगे इनिशियल डेज में, तो आगे उसकी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. So lastly, I'm going to share this abstract, which has not yet been published, but with the consent of Dr. Aisha and Dr. Kamar and Dr. Najmul Islam, मैं ये abstract share कर रही हूँ that we have done a small study in type 1 population. जो हमारे पास clinic पे patients आते थे type 1 diabetes के साथ, हमने उनको 2014 से इंडक्ट करना शुरू किया. उनकी लिस्टिंग हमने बनाई. हमने पेशेंट्स को क्योंकि बहुत सारी स्टडीज सपोर्ट करती हैं कि कार्ब काउंटिंग का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इन जिसमें वर्कशॉप्स का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, जहां पेशेंट को हम ग्रुप ऑफ टाइप 1 पेशेंट्स को वी हैव इनवाइटेड इन अ सेशन. हम AKU में किया था, पिछले 2014 से हमने इसको इनिशिएट किया था, और हर साल हम एटलीस्ट 3 से 4 वर्कशॉप्स कर रहे होते थे, जिसमें हम पेशेंट्स को कार्ब काउंटिंग टीचिंग, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, प्री एंड पोस्ट मील को किस तरह कंट्रोल रखना है, ICR के थ्रू इंडिविजुअली टोटल डेली डोज के हिसाब से पेशेंट को अपना ग्लूकोज किस तरह, इंसुलिन किस तरह लेनी है अकॉर्डिंग टू कार्बोहाइड्रेट, हमने इस पे फोकस किया था. सो मैं बिल्कुल एक शॉर्ट एंड स्मार्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि हमने देखा था कि प्री कार्ब काउंटिंग वर्कशॉप सेशन की और पोस्ट कार्ब काउंटिंग वर्कशॉप जो हमने AQs में अपने टाइप 1 पेशेंट्स के लिए की थी, उनके नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया सिग्निफिकेंटली कम हुए थे. अगेन नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हमारे पास अक्सर पेशेंट 2-2, 3-3 दफा DKA के बाद आके एंड अप हो रहे होते थे क्लिनिक्स पे, और उनके पास डिस्चार्ज समरी लगी हुई होती थी दैट दे वर एडमिटेड इन DKA. और जब हमने उनको एम्पावरमेंट के लिए वर्कशॉप शुरू करनी स्टार्ट की, हमने इनिशिएटिव लिया और हमने पेशेंट्स को साल में 2 से 4 मरतबा मल्टीपल वर्कशॉप्स में अपनी बुलाया, तो there was a significant reduction in the episodes of DK among these population. Again, empowerment over disease, ये 0 to 10 की स्केलिंग हमने रखी थी और हमने पेशेंट से कॉल करके भी पूछा था, और ये 2019 की हमने उनसे फीडबैक लिया था लास्ट ईयर, और उसमें हमें सिग्निफिकेंट एम्पावरमेंट देखी हमने टाइप 1 पॉपुलेशन के अंदर, जहां पर पेशेंट्स ने अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बेहतर फील किया एंड दे वर पॉजिटिव टुवर्ड्स अटेंडिंग दीज सेशंस इन फ्यूचर ऑल्सो. So HbA1c, which is a major indicator, जो कि आपको पोस्ट प्रैंडियल एवरेज ग्लूकोज लास्ट 2 months की बता रहा होता है, उसकी भी आप फिगर्स देख सकते हैं that the time since we have started conducting these workshops, तो 2014 से लेके 19 के अंदर, अगर हम 2014 में एवरेज HbA1c हमारे पेशेंट्स का 8 and above होता था, एंड देन इन 2019 हमने जब उसको एनालाइज किया, सो इट वाज बिटवीन 7.5 to 7.6, जो कि सिग्निफिकेंट या कुछ बेहतर पोजीशन में हमें HbA1c लेवल्स इन पेशेंट्स के दिखे थे. So it is hoped that carb counting teaching to type 1 diabetic patients will help practitioners and dietitians to practice this technique, which is going to play a significant role in the patient's empowerment over disease, better blood glucose control, and improving the quality of life. So lastly, I'm going to share a good news from our end, from the platform of Aachen University Hospital, British Medical Journal, and in collaboration with Royal College of Physicians and Royal College of Physicians and Surgeons in London. There is a collaborative course that is being launched in Pakistan. आज इसकी launching है BMJ की, which is basically directed by Professor Dr. Najmul Islam from Aachen University Hospital. और इसमें जो न्यूट्रिशन का मॉड्यूल है, इंक्लूडिंग डॉक्टर आयशा शेख एज अ कोर्स डायरेक्टर एज वेल,
We have न्यूट्रिशन मॉड्यूल के अंदर हमने इसके जो कोर्स है इसको डेवलप किया है, and we are proudly going to launch it today 4 p.m. in Aachen University Hospital. So this is going to be a very much informative and 6 months certification course for for physicians, जिसके अंदर हमारा contribution है, and we are going to launch it today. So thank you very much for the listening. If there is any question from Tuba and me, do let me know, and we are available to answer. And again, thank you, Get Pharma and Pakistan Nutrition Dietetic Society for giving us this opportunity to present on this platform. Once again, thank you very much.